Hello guys, welcome back to my channel Learn with Nancies. I hope you all are doing great, be fit and be safe. So coming back to our class, so in the previous class I had done with you the prime factorization of a number using the factor tree method. And if by chance you haven't watched the video, I will leave the link down in the description box. Please go and watch it out because that is also a part of class 3 and class 4 and which is helpful for your learning portion and for your examination purpose. So please do watch it. So coming back to what I am going to do today is known as the prime factorization method, which we were doing. The second part of it, which is known as the division method. So prime factorization of a number by division method. So what we are going to do is the prime factorization of a number by division method. So now this division method goes on till class 6 or 7 because it is a part of the LCM. Now factor tree method, most of the schools they don't follow it as a part of the LCM, but this method is continued. This, if I say, the division method is continued till class 3, from class 3, class 4, class 5, class 6 and class 7 till the time we have fractions and LCM. Okay, so let's show you how to do and how to take out a prime factorization of a number using this method. It's a very simple method. Okay, so the first number which we'll take out the prime factorization of is number 18. Okay, so now there's a format. I told you for the factor tree method there was a format. This also has a format. So we write the number जिसका हम लोगों को prime factorization निकालना है. Clear? Then we make a straight line and then we draw a line like this. This is the basic format. Now यहाँ पर क्या नंबर आएगा? यहाँ पर all the prime numbers will come, which is divisible by 18. That means we are doing the prime factorization method. So only the prime factorization method will come. The numbers which are the prime numbers will only come. जो numbers prime numbers है सिर्फ वही आएंगे. The composite numbers will not be coming into use. So as I told you, the smallest number is number 2. So we will see कि भैया 2 इससे divide होता है कि नहीं. So यहाँ पर this will be the divisor. ठीक है? I will make one more line out here. इसको जो नंबर यहाँ डालेंगे उसको इससे डिवाइड करेंगे and whatever the answer come we will write in this ladder. So 18, we see the last number. 8 is an even number because 8 comes in 2 times table. So hence 18 is an even number. So we write 2 confidently. I said टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप देख ही रहे हो कि मैं नंबर शॉर्ट कर लेता हूं उसका बाद लिखता हूं, उसका पहले रैंडम नंबर उठा के नहीं लिखता हूं. तो जब आप पढ़ा रहे हो बच्चे लोगों को तो प्लीज मेक श्योर उन लोगों का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पूरी क्लियर हो. तो देखेंगे इसका टेबल में ये कितना बार आता है. दिस इज अ स्मॉल नंबर तो वी नो 2 9 से 18 आता है, राइट. बट अगर बड़ा नंबर हुआ विल सिंपली डिवाइड 2 9 18. ठीक है. सो यहां पर आ जाता है, सुबह बैठा देता हूं, ये हो जाता है 9. ठीक है. इसको इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया यहां लिखा. ठीक है. नो अगेन दिस बॉक्स इज फॉर डिवाइजर. यहां पर जो खाली डब्बा है वो डिवाइजर के लिए है. अब 9, थिंक अबाउट इट. क्या 9 इवन नंबर है? 9 इज नॉट एन इवन नंबर. सो इट इज अ ऑड नंबर. इट इज एन ऑड नंबर. So 2 के बाद नंबर क्या था? प्राइम नंबर. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज नंबर 3. नाउ वी विल सी कि 3 आता है कि नहीं. सो ऑब्वियसली 3 से 9 आता है. तो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूं 3. आगे वी मेक अ लैडर बनाते जा रहा हूं एक के बाद एक. तो अब क्या किया, मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा. जो आंसर है कहां लिखूंगा? राइट इट आउट हियर. सो 3 3s are 9. तो डिवाइड भी करके दिखाता हूं अगर, तो 9
3, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहां पर 3 आ जाता है। नाउ वी फॉलो द सेम स्टेप एंड विल एंड दिस सम। तो 3, अब 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो बच जाएगा 1। तो 3 का टेबल में 1 टाइम्स में आता है 3, 2 का टेबल में 9 टर्म में आता है 18, 3 का टेबल में 3 बार में आता है 9। So now this is finished. Now in the previous class, I had missed out one statement. क्योंकि आप it's not a compulsion. जैसे मैं अगर if I'm using ML Agarwal S tenth book, उसमें नहीं लिखा रहता है. But जैसे कि most of the schools they tell the student to write for the better understanding. तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। हम लोग किसका फैक्टर्स निकाल रहे थे? हम लोग 18 का फैक्टर्स निकाल रहे थे, तो हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। 2 into 3 into 3 into 1. Now 1 क्या होता है? 1 एक लौता नंबर है जो सबका फैक्टर है। 1 is the only number which is the factor of every number, ठीक है ना। सो लिखते हैं 2 into 3 into 3 into 1. Now as I have told you in the previous class, अगर आपको चेकिंग करना है कि this answer is correct or not, मल्टीप्लाई करके देखिए 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 1s are 18. Hence this sum solves out here. अगर आपको सिर्फ 18 लिख के लिखना है, ये चीज फैक्टर ऑफ लिखना टाइम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लीव दैट आउट। क्लियर? मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सम। ये था सम नंबर 1। प्लीज कॉपी इट बिकॉज जब रिवीजन करेंगे तो यू कैन लुक एट माय सम कैसे किया हूं, ठीक है। दीज एरोज आर ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, करते वक्त नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज मैं जब बच्चे लोगों को समझाता हूं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, व्हेन दे डू द सम, जब वो लोग करते हैं सो वो लोग भी ऐसे करे कर देते हैं। सो प्लीज मेक श्योर जब अपना बच्चा आपका बच्चा करे, सो आपका बच्चा को बोल दिया जाए कि ये एरोज जो है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए था, इट वाज नॉट फॉर देयर पर्पस। उन लोग को करते वक्त नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम लिखते हैं क्या? नेक्स्ट नंबर इज 72। आप देखेंगे कि 72 जो है वो 2 का टेबल में आता है कि नहीं, बिकॉज 2 इज एन इवन नंबर। ये लास्ट नंबर चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। चेक कर लिया 2 इज एन इवन नंबर, मतलब क्या हुआ कि यहां पे श्योरिटी से लिख सकता हूं मैं 2। मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का हेल्प लिया, आ गया। अब डिवाइड करता हूं, इट्स अ लार्ज नंबर, तो बच्चे लोगों को बोलिएगा ठीक है, आपको पता है कितना टेबल में आता है, बट आप डिवाइड करो उसको, so that उन लोग का आंसर रॉन्ग ना जाए। 2 3s are 6, 1 2 6s are 12। तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो आया आपका 36, ठीक है। फिर लास्ट नंबर देखेंगे इसका, 6 is an even number, तो अगेन 2 से करेंगे। 2 का बार में आपका आता है, देखते हैं 18 बार में आता है, फिर डिवाइड कर देख लेता हूं। 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो 18 बार में आता है, ठीक है। फिर मैंने इसको इससे डिवाइड किया, जो आंसर यहां लिख दिया, तो ये 2 से करेंगे। क्यों करूंगा? बिकॉज 8 जो है इवन नंबर है, सो 2 को फिर डिवाइड करूंगा 18 से, तो 2 9s आ जाएगा। अब 9 इज एन ऑड नंबर, वो 2 का टेबल में नहीं आता है, तो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है आपका 3 से करूंगा, तो 3 का टेबल में आता है 3 बार में, आगे 3 से करूंगा, खत्म हो जाएगा सम। तो फैक्टर्स क्या निकला? अगेन वी कैन राइट फैक्टर्स ऑफ 72। मैं सिर्फ 72 लिख रहा हूं, तो बोर्ड में जगह नहीं बचता है। तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 1, तो 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 1। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3 24, अब 24 3 का कितना होता है? 4 3s are 12, 3 2 are 6 1 7। Hence आपका फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर आपका 72 आ जाता है, then your answer is correct. That means this sum is correct. Okay? This is the way by which you will do the prime factorization of a number
यूजिंग द डिविजन मेथड। लास्ट सम करवाता हूं फटाफट। इस बार मैं डिवीजन शो कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, हाँ ठीक करता हूं। नेक्स्ट सम इज, इस बार मैं छोटा लिखूंगा बिकॉज आपको पता है जितना बड़ा नंबर होता है उतना लंबा वो चलेगा, तो बोर्ड में फिट ना हो तो इसमें मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं। अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज लैंडस्केप कर लीजिएगा while watching the video, the last sum. So 459. now इसको ध्यान समझिएगा। लास्ट नंबर देखता हूं 9, इवन नंबर नहीं है जा। अब क्या करेंगे? अब बच्चे को बोलिएगा बेटा गो टू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 3 आ गया। अब 3 को हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे, देन श्योरिटी से लिखेंगे यहां पर कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो लेट्स रिवाइज व्हाट वाज द रूल फॉर 3। द रूल ऑफ 3 सेट, अगर सम ऑफ द डिजिट्स को ऐड करते हैं हम लोग, उसका बाद जो नंबर आता है, डिजिट जो आता है वो अगर 3 का टेबल में आता है, देन दिस पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देखते हैं इसको, 4 + 5 + 9, तो 9 + 9 इज 18। हेंस प्रूफ होता है विदाउट डिवाइडिंग दैट तुम्हारा 3 से ये नंबर डिवाइड हो गई होगा। तो हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है ना। अब मेंटली अगर आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग है, ही और शी कैन डिवाइड, बट हम वीक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, सो आई विल जस्ट डिवाइड इट एंड शो इट टू यू ऑल। 3 1s are 3, 1 बचा, 15 आया, 3 5s are 15, 9 बचा, 3 3s are 9. So after dividing what do we get is 153. तो मैंने बोला था ये नंबर को डिवाइड करूंगा इससे, ये नंबर को डिवाइड करूंगा इससे, जो आंसर आता है वो मैं इधर लिख दूंगा। Now again this number, this digit is not an even number. अगर पकड़ लेते हैं ना, मैं 3 से यहां पर किया और जो नेक्स्ट नंबर आया वो 2 से एंड हो रहा है, देखो इवन नंबर से एंड हो रहा है, फिर भी यू कैन नॉट टेक 2 आउट हियर। मतलब ये अगर 2 यहाँ पे लिख देते हैं ना तो ये गलत हो जाएगा। वील गो ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर्स, दैट मींस 2 विल कम फर्स्ट, जब तक 2 से होता है तो करेंगे, उसका बाद विल गो ऑन टू 3। 3 के बाद 2 नहीं आ सकता, 5 के बाद 3 नहीं आ सकता, 2 3 5 7 9 ऐसा रह जाएगा, ठीक है। सो यहां पर अगर 2 लिखते तो ये रॉन्ग हो जाता। इसको भी ऐड करेंगे बिकॉज इट्स ऑड नंबर, so 1 + 5 + 3, so 6 + 3 is 9, that means again it will be divided। तो इसको श्योरिटी से लिख देता हूं 3। हाँ, तो उसको डिवाइड कर लेंगे, तो टाइम वेस्ट करिएगा और डिवाइड जरूर करिएगा। तो एकदम स्ट्रॉन्ग ऑफ डिवीजन में, मेंटली डिवीजन स्ट्रॉन्ग हो तो कर सकते हो विदाउट डिवाइडिंग इवन। 3 5s are 15, 3 3 1s are 3, 51 comes, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे 51 आ जाता है। वेरी गुड। अगेन यू सी इट्स एन ऑड नंबर, तो करेंगे 5 + 1 दैट इज 6, so 6 is the number which comes in 3 times table, तो 3 से करेंगे, अगेन श्योरिटी होगी हम लोग को। अब डिवाइड करता हूं 3 को 51 से, 3 1s are 3, 2 बचा, कैरी 1, 3 7s are 21। सो अब आया है 17। इसको मैंने इससे डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, आया 17। तो 17 itself is a prime number, 17 is a prime number। तो क्या होगा, हम लोगों को 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by 1 और itself। खत्म करते हैं हमको फटाफट, 17 1s are, और ये खत्म। लिख देता हूं स्टेटमेंट का सम इस बार, there will be no confusion। Factors of 17, sorry not 17, it's 459। तो आता है 3 × 3 × 3 × 17 × 1, 3 × 3 × 3 × 17 × 1,
ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गारंटी यू दैट इट विल कम एज 459. प्लीज डू मल्टीप्लाई एंड सी इट बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता है. सो दिस वाज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर बाय अ डिविजन मेथड. ये प्रोसेस काम आएगा आपका एलसीएम में. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. ठीक है. सो आई एंड माई क्लास टूडे. टू द पॉइंट में क्लास रखता हूं बिकॉज एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो बिकॉज द नेक्स्ट वीडियो फाइनली हम लोग एलसीएम स्टार्ट करेंगे. आप देखे होंगे इफ यू आर नोटिसिंग एलसीएम स्टार्ट करने का पहले मैंने कितना सारा चीज करवाया. मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कराया, फिर मैंने करवाया आपका प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, फैक्टर्स, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करवाया. सो इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस. तो मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूं. प्लीज गो अलॉन्ग विद मी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जितना बच्चे लोगों को पता चलेगा ये चीज के बारे में उतना बेटर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेकिंग योर टाइम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट कि आप लोग मेरे लिए टाइम निकालते हैं एंड यू ऑल वॉच माई वीडियो. I really appreciate you all for watching my video and giving me those lovely feedbacks. Thank you so much. Bye bye. Meet you soon.